आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ अपने YouTube चैनल पे और एक नए संदेश के साथ। I'm happy to be here with my new message for today, and I want to wish you all a happy Sabbath. God bless you as you listen to this message. Let's pray. Our Father in heaven, once again, it's a privilege that you have given me to prepare messages. Help me with the power of the Holy Spirit to speak to the people through YouTube channels so that many will be brought back to that throne of mercy. Please submit the people who are going to listen to it. Bless them as they share the message to the others. Bless each one of us, for we ask this your blessings in Jesus' name. Amen. जैसे कि मैंने बोला, आज नया संदेश है मेरे पास। और ये जो है संदेश बड़ा डायरेक्ट सा है। It's something that we often do, and God doesn't like when we do this. I'm sharing my screen for my PowerPoint. So here comes my screen. The title says, "Have I taken God's name in vain?" Okay. क्या मैंने ईश्वर का नाम ऐसे ही व्यर्थ में ले लिया है? क्या मुझे ईश्वर का नाम व्यर्थ में लेना चाहिए? अगर हम देखें तो इसको अगर हम कहें, हर एक कोई ऐसा नहीं है जो कि कभी कभी गलती नहीं करता है। एवरी टाइम वी कीप मेकिंग मिस्टेक, बट हियर द टॉपिक इज, हैव आई टेकन गॉड्स नेम इन वेन? This is taken from the third commandment. It says, "Thou shalt not take the name of the Lord in vain." I'll read it in Hindi. So it says here, to 27, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। God will not hold him guiltless if we take God's name in vain. And God doesn't want us, God, because He has chosen us. So He's never happy whenever we take His name in vain. We have to take His name in reverence. We have to give reverence to God. Then only God is happy. Now, when we look at here, हमें परमेश्वर के नाम की व्यर्थ में नहीं लेना है। यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड इन वेन। परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में नहीं लेना है। ये तीसरी आज्ञा है जिसके लिए हमें ये हिदायत दी गई है कि हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लें। It says, do I choose not to take Lord's name in vain, or do I use it for drama? क्या मैं ये चूज करती हूँ कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है, या मैं दूसरों को दिखाने के लिए ड्रामे के तौर पे मैं परमेश्वर का नाम लेती हूँ? डू आई चूज नॉट टू यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज? क्या मैं अपनी भाषा में बुराई को मैं लेकर आती हूँ? डू आई यूज द फाउल लैंग्वेज, जो भाषा दूसरे सुनने वाले के लिए सही नहीं है? Do I use offensive language because other people use it in the conversation or in the media? क्या मैं ये भाषा, जैसे मैं दूसरों को देखती हूँ वो यूज कर रहे हैं, तो मैं भी दूसरों के साथ उन्हीं के लय में बह जाती हूँ, और मैं भी जैसे दूसरे बोलते हैं वैसे ही मैं भी बोलना मांगती हूँ, दूसरों को कॉपी करते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर लोग हर एक जगह, हम दुनिया के कोने में जाइए, स्लैंग या बुराई बात या मुंह से ऐसी शब्द निकल जाते हैं जिनको हम सोचते हैं कॉमन सी चीज है, लेकिन याकूब में बताया गया है, we have to control our tongue, we have to see how best our words are coming out of our mouth, how best we are making use of our tongue। हम अपने जुबान का कितने अच्छी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। ये परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे हम या दूसरा इंसान वो सुनना ना मांगे और उसका क्रोध भड़क जाए। Proverbs 18:10, it says, "The name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it and are safe."
Yes. Name of the Lord is the fortified tower. यहोवा का नाम एक गढ़ है, सुदृढ़ है. God's name is very sacred. We have to take it with a humility. We just cannot utter God's name whenever we want. ऐसा नहीं है जब भी हम चाहें तब परमेश्वर का नाम ले लें. नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बड़े संजीदगी से, हलीमियत से हमें उसका नाम लेना है. उस ओर धर्मी बढ़ जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं. Those who take the name of the Lord are the righteous people, and they are safe from the worldly troubles. So therefore, it's very essential for us not to take God's name in vain. When we look at here James 5:12, it says, above all, my brothers and sisters, do not swear not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple yes or no. Otherwise, you will be condemned. याकूब जो है, जिसने याकूब की पुस्तक लिखी है, वो बड़े संजीदगी के साथ कह रहा है, हे मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्ग की अथवा धरती की या किसी भी प्रकार की कसमें खाना छोड़ो. तुम्हारी हाँ हाँ होनी चाहिए और ना ना होनी चाहिए, ताकि तुम पर परमेश्वर का दंड ना पड़े. And it says you should not swear in the name of the heaven and earth. I swear in the name of heaven, or I swear in the name of the earth, or I swear in the name of somebody else's name you take. But God says, if you say yes, it has to be yes, but do not take swear. सच्चाई की ओर बढ़ना है, और सच्चाई में जब हम जाते हैं तो हमें हाँ है तो हाँ बोलना है और ना है तो ना. So we have to remain into the truth. Do not swear by heaven or by earth. And if we do that, then we will be condemned. जब हम कसम खाते हैं तो परमेश्वर हमें दंड देगा. उस दंड से बचने के लिए हमें किसी भी प्रकार की कसम नहीं खानी चाहिए. यहाँ पे ये कह रहा है यशाया, उसका 29वां अध्याय और 13वीं आयत पे कह रहा है, The Lord says, these people say that they love me. They show honor to me with words, but their hearts are far from me. The honor they show me is nothing but human rules they have memorized. Very clearly in the book of Isaiah, we see people say they love me. परमेश्वर कह रहा है कि लोग कहते हैं कि वो मुझसे प्रेम करते हैं. कौन से लोग हैं? जो दिखावे के लोग हैं. वो कहते हैं परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं. जब हम कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने मुख के शब्दों से वे मेरे प्रति आदर व्यक्त करते हैं. They only take my name to praise me, to show that they really love me, but inside they don't love me. It says here, they show honor to me with words. सिर्फ शब्दों से ही हम परमेश्वर को सम्मान नहीं दे सकते. परमेश्वर जानता है कि वो सम्मान हमारे हृदय से आ रहा है या ऊपरी तौर पे हम परमेश्वर का सम्मान कर रहे हैं. But their hearts are far from me. उनके दिल मेरे से बहुत दूर है. मैं उनके दिलों में नहीं समा सकता जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, जो परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं. But their hearts are far from me. उनके दिल मेरे से बहुत दूर हैं. The honor they show me, जो मुझे इज्जत या सम्मान दिखाते हैं, वो कुछ नहीं है, is nothing but human rules they have memorized. हम जो 10 आज्ञाएं हैं वो परमेश्वर की उंगली से लिखी हुई हैं. The 10 commandments are written by God's finger. But we believe on the man-made rule and we forget to honor God. जब हम आदमियों के बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं तो हम ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे, ईश्वर का सम्मान नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से करोड़ों मील दूर है. परमेश्वर जानता है ये किस तरह का सम्मान हम परमेश्वर को दे रहे हैं. It says,
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. The person who is taking the name of God in vain, God is going to condemn him. परमेश्वर उसको दोषी ठहराएगा अगर हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेंगे। हम जब आराधना कर रहे हैं, जब हम प्रार्थना में जा रहे हैं, तो हम परमेश्वर का नाम लेके ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हम बैठे हैं दोस्तों के साथ या रिलेटिव्स के, रिश्तेदारों के साथ, when we sit with the relatives and we sit with our family, we simply tend to take God's name. That is what is not required for us by God. God doesn't want us. When you're discussing your own family matters, you don't need to take the name of God in vain. This is what God is saying. हम फैमिली में बैठे, रिश्तेदारों में बैठे, हमें परमेश्वर की कसम खाने की जरूरत नहीं है। जब हम परमेश्वर का नाम फालतू में ले लेते हैं तो हम दोषी ठहराए जाते हैं, और परमेश्वर हमें हर एक शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है, every word that is coming out, God is going to punish us. So let's keep in mind how we have to honor God in our life. Matthew 12:36-37 says, But I say unto you that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. He was talking to these people, the Pharisees and Sadducees here. But I say unto you that every idle word that man shall speak, कोई भी बिना मतलब के शब्द को अगर हम बोलेंगे, they shall give account thereof in the day of judgment. हर एक शब्द जो अपशब्द हमारे मुंह से निकलेगा, किंतु मैं तुम लोगों को बताता हूं कि न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने हर व्यर्थ बोले शब्द का हिसाब देना होगा. Any unpleasant word that we speak, we have to give account of that on the day of judgment. जब न्याय होगा तो जो शब्द हमारे मनों से दूसरों के लिए निकले हैं, उन सब का हिसाब होगा. तेरी बातों के आधार पर ही तुझे निर्दोष और तेरी बातों के आधार पर ही तुझे दोषी ठहराया जाएगा. If you have spoken good words, you will be sinless. But if you have spoken words contrary to God's way, you will be condemned and you will be punished. हमारे मुंह से जो अपशब्द निकलेंगे उसके लिए हमें सजा दी जाएगी न्याय के दिन. हमारे मुंह से जो अच्छे शब्द निकलेंगे, परमेश्वर हमें उसका भी प्रतिफल देगा. God is going to reward us for every word, whether it is good or bad. We will get a reward. If it is bad words that are coming from our lips, we will be condemned on the day of the judgment and will be punished. If the good words are coming from our lips, God will reward us with a positive way by taking us to heaven. So this is very much required. Now you see here, I have taken this kind of steps, man's downward plunge. आदमी किस तरीके से नीचे गिरता चला जाता है. रोमियो उसका पहला अध्याय 19 से 32 में लिखा हुआ है. 19 से 21 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को आदमी जानता था. आदम और हवा से परमेश्वर बात करने आता था. So man knew God in the beginning. He did not honor and glorify God for who he was. अब आदम और हवा को अगर देखें तो यहाँ पे जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के जो ऑनर था, जो महिमा थी, वो उन्होंने उसको पहला स्थान नहीं दिया. वो भूल गए कि उन्हें आज्ञा का पालन करना है. जब हम परमेश्वर को ऑनर नहीं करते, परमेश्वर की महिमा नहीं करते, तो हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं. फिर देखते हैं he was not thankful to God. Okay. Man is never thankful to God. 121 says, Romeo 121, I will read here. It says here, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पे भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य
बड़ाई और धन्यवाद ना किया. Man is never grateful to God for what God does to him. From the beginning, man knew God. Is coming, the downward trend is failing when it comes to coming close to God. So here he was never thankful. Now, when we look at the story of 10 lepers who were healed by God and Jesus, and only one came back to say thank you. जो 10 कोढ़ी थे जिनको यीशु ने चंगा किया, उनमें से एक ही है जो उसको धन्यवाद करने आया. We are never grateful to God for what He does, and therefore, when we are not at all thankful to God. So this is what we have to see, how best we can be true to God's word. How can we honor God? Now, when we look at here, we have to be thankful to God, not by our words. Next, it says, he began to worship idols. Now, आदमी यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया. परमेश्वर की आराधना करने के बजाय उसने मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी. अब यहाँ पे कह रहे हैं, he began to worship. 22 और 23 आयत में लिखा हुआ है, वे अपने आप को बुद्धिमान जता के मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाली. तरह तरह की उन्होंने अपने मूर्ति बना ली, उसकी पूजा करने लगे. ये परमेश्वर की जब क्या है, ये तौहीन हो गई. Disrespect to God when we go away from God and we worship idols. So see where man has come. Here he was close to God and he is coming down, not glorifying, not giving honor, not thankful, coming down. And he is making those corrupt, sinful life, making idols, becoming corrupt, more and more corrupt. Then he is going into the ditch of sin. पाप के समुद्र में वो गिर जाता है. He tried to push God out of his mind, और इस तरीके से उसने परमेश्वर को अपने दिमाग से निकाल दिया. जब हम परमेश्वर को आराधना नहीं करते, जब हम परमेश्वर का नाम हलीमियत से नहीं लेते, जब हम परमेश्वर के नाम से कसम खाते हैं, तो हम परमेश्वर को अपने दिमाग, अपने मन से बाहर कर देते हैं. When we swear in the name of God, when we worship different gods in a life, we push God out of our mind, out of our heart, and God has no place for us in our heart. This is how man has gone down to that extent. Here it says, in vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of man, Matthew 15:9. मेरे लिए उनकी उपासना व्यर्थ है, क्योंकि उनकी शिक्षा केवल लोगों द्वारा बनाए हुए सिद्धांत से है. Man has made their own commandments, their own doctrines, and man has become slave to other men. Earlier, God has made God perfect, man perfect. But man has made himself a slave to all these man-made rules, man-made idols, man-made statues. He has made himself slave to all these things, made himself slave to the worldly things. आदमी ने क्या किया? परमेश्वर की उपासना नहीं की, क्योंकि उसके मन में दुनियावी चीजों की शिक्षा या दुनियावी लोगों के बनाए हुए सिद्धांत या दुनियावी लोगों के बनाए हुए मूर्तियां या कोई भी चीज जिसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दें, वही हमारे लिए आइडल बन जाता है. Take for example, if we watch TV for a long time, we are going away from God. If we watch mobile, we watch all those social medias and we get into that, and we tend to get away from God. हम अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लेते. परमेश्वर हमें दूर नहीं करता. God is always with us, but we tend to go away from God. God doesn't go away from us. God has said, I will never leave you nor forsake you.
परमेश्वर कहता मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी वो करूंगा। तो यहाँ पे जो है आदमी ही परमेश्वर से अलग हो जाता है। They exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served created things rather than the Creator who is forever praised. They exchanged truth, सच्चाई को छोड़ के झूठ का सहारा लिया। उन्होंने झूठ के साथ परमेश्वर के सत्य का सौदा किया। फिर सृष्टि के बनाने वाले को छोड़ उसकी बनाई सृष्टि की उपासना की सेवा करने लगे। Man has created everything which is on the earth, from nature to everything which we see all around us. But that is the creation of God. परमेश्वर की बनाई हुई रचना, सारे फूल पत्ती पेड़ पौधे जानवर जितने भी हैं, ये सिर्फ परमेश्वर ने बनाए हुए। आदमी ने क्या बनाया? आदमी ने कुछ नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं वे सृष्टि के बनाने वाले को छोड़कर, ईश्वर को छोड़कर उसकी बनाई सृष्टि की उपासना सेवा करने लगे। अब जैसे ले लीजिए, पेड़ ले लीजिए, ईश्वर ने पेड़ बनाया, सूरज ईश्वर ने बनाया, चांद ईश्वर ने बनाया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। हम सूरज की कर रहे हैं, हम नेचर की कर रहे हैं, हम किसी भी चीज की जो भी हमारे मन में आता है, आदमी के दिमाग में आता है। जैसे इजरायलियों ने जब मूसा पहाड़ पे गया था, तो जब उन्होंने आग में सारे जो अपने सोने के जो जेवर थे, इयररिंग्स और जो कुछ भी उनके पास, तो उन्होंने जब आग में फेंका तो एक बछड़ा बन जाता है। अब वो कहते हैं यही हमारा ईश्वर है। ये परमेश्वर की तौहीन थी। तो उन्होंने, परमेश्वर ने जिसको बनाया उसी को तुमने दोबारा बना के उसकी तौहीन करना। When we make, it says, when we leave the creation of God and make our own creation, and we praise that creation which is created by God, we don't worship God, we make our own creation and we worship that. The Israelites did that. They made the golden calf, उन्होंने बछड़ा को बनाया और उसके पूजा करने लगे कि यही हमारा ईश्वर है। दिस इज व्हाट गॉड डजंट वांट। ईश्वर को ऐसा चीज नहीं चाहिए कि हम जो परमेश्वर की बनाई हुई चीज को जो है हम क्या कर रहे हैं, उससे अपनी दूसरी चीजों में अपना मन लगा रहे हैं। टेकिंग गॉड्स नेम इन वेन एक्सीडेंटली। ओह माय गॉड, ओह गॉड, and then you say swear Jesus, I swear in the name of Jesus। ये क्या है? knowingly, third commandment कहता है thou shall not take the name of God in vain। accidentally कैसे हम करेंगे? oh God, ये accidentally नहीं है। हमें मालूम है कि हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। ऐसे टेकिंग गॉड्स नेम इन वैन, एक्सीडेंटली नहीं, एक्सीडेंटली नहीं होता है। हम कह देते हैं गलती से हो गया। गलती में सुधार भी आना चाहिए। अगर आपने एक बार गलती की है तो उसको सुधारो भी। इफ वी आर टेकिंग गॉड्स नेम एंड एक्सीडेंटली से आई डिड इट बाय मिस्टेक, then we need to get back to God and ask forgiveness of our sins। or if we are not asking forgiveness of our sin, that means we tend to use God's name in vain more often। अगर हम परमेश्वर से उस गलती की माफी नहीं मांग रहे हैं, इसका मतलब ये है हम परमेश्वर की जो रचना है उसको छोड़ के जो हमारी रचना है उसमें जा रहे हैं। हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए। कभी कभी हम देखते हैं, जी रुकते हैं, अच्छा इसने ओ माय गॉड बोला या बाय गॉड बोला, इसका मतलब ये क्रिश्चियन है। लेकिन ऐसा नहीं है। ओ माय गॉड तो दूसरे भी बोलेंगे, या अल्लाह या हे भगवान। ये सब चीजें हैं जो कि परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसे ईश्वर का नाम कोई भी व्यर्थ में लेना नहीं चाहिए। अब हम कोई भी धर्म में जो है हमें अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं, झूठ नहीं बोलना, ईश्वर का नाम नहीं व्यर्थ लेना, किसी दूसरे की पूजा नहीं करना, ईश्वर एक ही है। ये सब चीजें जब हम करते हैं, हम परमेश्वर की जो हम नाम ले रहे हैं बड़ी संजीदगी से, जब प्रार्थना में जा रहे हैं तो हम परमेश्वर का नाम ले रहे हैं।
क्योंकि वहां पे हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। लेकिन जब हम दो दोस्तों में बात कर रहे हैं और हम कह देते हैं ओ माय गॉड, या बाय, अच्छा कह देते अच्छा तुम ईश्वर की बोलो, ये गलत है। हमें ऐसा नहीं करना। वी डोंट नीड टू टेक द नेम ऑफ गॉड इन वेन। वी डोंट नीड टू यूज दोस टर्म्स which are making us to fall into sin. Let's be very careful in taking the name of God. A vain worship, it says, Matthew 15, verses 8 and 9, it says, these people draw me near to me with their mouth, honor me with their lips, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandment of man. ये लोग केवल होठों से मेरा आदर करते हैं। यह हमने याकूब की पुस्तक में भी देखा कि केवल होठों से, we only say, oh, I love God, I like to read Bible, I like to preach, I like to pray, but that is only superficially we do. In our hearts, we tend to run away from prayer. हम प्रार्थना करने से घबराते हैं। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का नाम आदर से लेंगे। हम सोचते हैं प्रार्थना किसी दूसरे के सामने करें तो क्या होगा, शर्म आ जाती है हमें। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, अगर हम, कई बार होता है ऐसे मेरे साथ, अगर मैं किसी को कह दूं प्रे कर, नहीं मैडम मैं प्रेयर नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। अगर आप परमेश्वर से प्रेयर नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर का, आपका कोई हक नहीं बनता कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ले। परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जब आप बात करते हैं तो परमेश्वर का नाम बड़े हलीमी से लिया जाता है। When we pray to God, we don't have lip service. We sincerely pray to God. I remember the two men who went to temple. One was a Pharisee and one was a Samaritan, the publican. And this Pharisee was always praising himself. I do this, I pay tithe, I have done this. I'm not like that man who's praying there. उसमें इतना घमंड था, उसके प्रार्थना में भी घमंड था। उसने कहा मैं उसके जैसे नहीं हूं, मैं दशमांश भी देता हूँ, मैं लोगों की सेवा भी करता हूँ, मैं विधवा को भी करता हूँ, मैं सब करता हूँ, लेकिन मैं उसके जैसे नहीं हूँ। उसमें मैं की भावना थी। He had the spirit of I, praising himself even in the prayer. But the other publican, he was not lifting his head up. He only was crying unto the Lord. That is true worship. That is not known as the lip service. But this Pharisee who says, I do this, I do that, मैं ये करता हूँ, मैं दशमांश भी देता हूँ, मैं गरीबों की भी मदद करता हूँ, वो ऊपर से परमेश्वर को दिखाने के लिए बता रहा था कि मैं क्या करता हूँ। God doesn't know what we do for God. He definitely knows what we are doing for God. हम जानते हैं, परमेश्वर जानता है कि हमारे मन से जो भी हम कर रहे हैं वो मन से कर रहे हैं या ऊपरी तौर पे कर रहे हैं। लेकिन दिखावे की वर्शिप, दिखावे से हम दूसरों को अगर करें कि हम क्रिश्चियन हैं, ईश्वर का नाम व्यर्थ लेंगे, तो वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता, वो मसीह का फॉलोवर नहीं हो सकता। ये कह रहा, इसलिए कह रहा है मेरे लिए उनकी उपासना व्यर्थ है, क्योंकि वो तो मेरे से कोसों दूर है, वो तो मेरा आदर ही नहीं करते। दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर मी, दे आर फार फ्रॉम मी, हाउ विल दे वर्शिप मी? दे ओनली डू लिप सर्विस फॉर द नेम से। गए चर्च में चले गए, बस वहां पे बैठे और फिर वापस आ गए, कुछ असर नहीं हुआ संदेश का। और फिर हम चर्च गए थे, हम फेथफुली चर्च जाते हैं। क्या फेथफुली चर्च जाने का मतलब यह है कि आप मसीही हैं या मसीह का नाम आप ले रहे हैं चर्च में बैठ के, या आपने बाइबल खोली या बाइबल लेके गए? बहुत जरूरी है कि हम व्यर्थ में परमेश्वर का नाम ना लें। जब हम व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर खुश नहीं होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं in our worship. Then Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it, put incense on it, and offered profane fire before the Lord, which he had not commanded them. Fire went out from the Lord and devoured them,
and they died before the Lord. I will read this in Hindi also. ये नादाब और अबीहू दो बेटे थे हारून के, जो याजक था, मूसा का भाई था। फिर तभी हारून के पुत्रों नादाब और अबीहू ने पाप किया। दोनों पुत्रों ने लोबान जलाने के लिए तशरी ली। उन्होंने एक अलग ही आग का प्रयोग किया और लोबान को जलाया। उन्होंने उस आग का उपयोग नहीं किया जिसके उपयोग का आदेश मूसा ने उन्हें दिया था। इसलिए यहोवा से ज्वाला प्रकट हुई और उसने नादाब और अबीहू को नष्ट कर दिया, यहोवा के सामने मरे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंसेंस इन्हें बोला गया था जलाने के लिए, they did not use that incense. Nadab and Abihu, they were of course the Levites there. They were the priest also, but the fire which they were supposed to use, they did not use. It says, each took his censer and put fire in it. Okay, they were ready to use incense on it and offered profane fire. जो फायर इनको लिए यूज करनी थी, इन्होंने वो नहीं यूज करी, प्रोफेन फायर यूज करी है बिफोर द लॉर्ड व्हिच ही हैड नॉट कमांडेड. God did not tell them to use this fire to burn incense. They had their own way of using the fire to burn the incense, and God took their lives immediately because they did not listen to what they were supposed to do as a priest. उन्होंने एक अलग ही आग का प्रयोग किया. It was not the fire which was from the temple. They used another fire and they put incense on it, which was against God's order. उन्होंने उस आग का उपयोग नहीं किया जिसका उपयोग का आदेश मूसा ने उन्हें दिया था. Moses had very strictly told them which fire they are supposed to take and burn incense. They disobeyed. As a result, when they disobeyed, God took their lives away. वो उसी में जल के भस्म हो गए. जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन सही ढंग से नहीं करते तो परमेश्वर जो है हमें सजा उसी टाइम दे देता है. जैसे केन और हाबिल थे. We can see the story of Cain and Abel. And they brought offering to God. Abel had brought the sacrifice, a 1-year-old lamb, and sacrifice, and God accepted his offering, his worship. But God did not accept the offering of Cain because that offering did not have blood in it. And therefore, when Cain got angry, he was angry with God. परमेश्वर से गुस्सा था क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जो ऑफरिंग थी, भेंट जो थी, उसको स्वीकार नहीं किया था. और एज अ रिजल्ट उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपने भाई हाबिल को फील्ड में जाके मार दिया. हम ये देखते हैं परमेश्वर ने उसको सजा क्या दी कि तू मारा मारा फिरेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो नोमैड कहलाएगा. उसने कहा परमेश्वर ये मेरी सजा बहुत ज्यादा है. हम देखते हैं कि जब हम पाप करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, जब हम परमेश्वर की भेंट उसके अकॉर्डिंगली नहीं चढ़ाते, परमेश्वर हमें सजा देता है. क्योंकि हमें परमेश्वर जो हमें बताता है अपने दास के द्वारा, हमें वो ही करना है. अगर नादाब और अबीहू वो फायर को लेते जो मूसा ने दी थी, मैं नहीं सोचती वो मरते या उनको मारा जाता, लेकिन ऐसा हुआ. तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर के लिए ये कहते हैं ओ माय गॉड. ओके, फॉर अ कॉमन मैन दिस इज अ कॉमन टर्म. ओ माय गॉड, व्हाट डज इट मीन टू टेक गॉड्स नेम इन वेन? हम रियलाइज भी नहीं करते हमने परमेश्वर का नाम कैसे हमने व्यर्थ में ले लिया, क्योंकि हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं मालूम. जो लोग इस नाम को यूज करते हैं, द पीपल हु यूज देयर सच टर्म्स, they don't know the importance of God's name. Either they don't want to know, either they know and they want to show to others by swearing in the name of the God that what they are saying is right. That's why they do all kinds of things. So we should not take the name of God in vain. Then what shall we do? It says reverence God in worship.
God is to be greatly feared in the assembly of the saints and to be held in reverence by all those who are around him. परमेश्वर पवित्र लोगों के साथ एकत्रित होता है, वे स्वर्गदूत उसके चारों ओर रहते हैं, वे उसका भय और आदर करते हैं, वे उसके सम्मान में खड़े होते हैं. Those who take the name of God, they out of the fear and respect for God, God is standing beside them. We want God to be standing beside us, and we want to take God's name out of our reverence for him. We need to honor God's name whenever we are worshiping. If somebody is taking God's name in vain, we need to tell them the importance of God's name. अगर कोई परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ले रहा है, हमें उसको सिखाना है, हमें उसे बताना है कि परमेश्वर का नाम किस तरीके से लेना चाहिए, परमेश्वर के नाम की कितनी ज्यादा अहमियत हमारे जीवन में होनी चाहिए. अगर आप देखते हैं कि कोई परमेश्वर के नाम की तौहीन कर रहा है, please tell them not to do it. Teach them that God's name is to be taken out of reverence and love for God. If you see somebody doing it, you need to teach them not to take God's name in vain. Otherwise, we will be called guiltless. We will be condemned by God on the day of the judgment, and we don't want God to do this for us. So let's carry on God's name and take the message to the people, give them the importance of God's name and the value of how to take God's name. God is definitely on our side. God is on the sides of the righteous people. God is always blessing his righteous people. May God bless you. Let's pray. Our Father in heaven, once again, thank you for giving me the words to bring out this message to the people so that they'll be able to understand how to take God's name and not to take God's name in vain, because you are greatly to be honored, greatly to be blessed, greatly to bring glory to your name. Help us to continue doing that and continue telling the people how to take your name out of our respect, out of our reverence for your name. Bless the ones who are going to listen to it. Bless us also for the rest of the day. For we ask these few blessings in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. I'll come again. मैं जल्दी ही आऊंगी अपने चैनल पे.